Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and in today's video we will discuss about another journal topic, and today I have taken the topic that is very common and you all must have heard about this. So today I have taken the topic pollution. But before starting the video, I want to request all of you to subscribe to our channel and press the bell icon beside it. It gives us motivational to make more educational videos for you, and please leave the feedback in comments and tell us what other topics you are interested to know about. Now, without wasting any further time, let's start this video. So basically, what is pollution? Pollution is a process of making land, water, air, sound, or anything that is related to environment dirty and not safe or suitable to live in or use. बेसिकली कुछ भी environment में ऐसा कुछ contaminant या फिर कुछ impurity डाल देनी जिससे हमारी जो environment है वो गंदी हो जाए और हम वहाँ पे survive ना कर सके. So this is pollution. तो ये basically introduction of contaminant into the natural environment. What is contaminant? Contaminant basically refers to toxicity or something dangerous or impurity to spoil, like something to spoil our environment. तो कुछ भी ऐसा environment में introduce कर देना जिससे हमारी environment गंदी हो जाए, हम वहाँ पे वहाँ पे like ना रह पाए, like we won't be able to survive there. और one more thing कि contaminant हमेशा जरूरी नहीं कि वो tangible ही हो. Now what is tangible? Tangible means anything, any object that we can touch. This is called tangible objects. टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम सिर्फ टच कर सके, बट इनटेंजिबल होते हैं जैसे हम फील कर सके, और चाहे हम उसको टच ना कर सके बट वी कैन फील इट. सो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पेन की, ठीक है, और सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर लैपटॉप, मोबाइल, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन टच, राइट? बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप, लव एक ही टाइप का लव नहीं होता, पेरेंट्स के साथ भी होता है. तो ऑल ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव, all of these things, if I'm talking about these feelings, these are intangible. And if I'm talking about tangible objects, something that we can touch. So when we're talking about contaminants, contaminants are not necessarily be tangible, they can be intangible also. For example, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. there things as simple as light, sound and temperature can be considered pollutant when introduced artificially into the environment. Let's move ahead. Pollution is an introduction of harmful material into environment. These harmful materials are called pollutants. So if the question comes ki what is pollutants? Pollutants are the harmful material that is introduced in our environment. Pollutants natural भी हो सकते हैं, for example volcanic ash होगी जो volcano से निकलती है, और ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जैसे हम ट्रैश फेंक देते हैं चलते चलते, रनिंग करते करते या घूमते घूमते हमने कुछ खाया, आइसक्रीम खाई और हमने जो उसका पेपर रैपर है उसे बाहर फेंक दिया. तो इट लाइक हम वी आल्सो यूजिंग पोल्यूशन. कुछ भी हो सकता है पोल्यूशन. इट कैन बी थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, इट कैन बी थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है. थोड़े बहुत जैसे ऑर्गेनिक एश का एग्जांपल लिया हमने, और जैसे रन ऑफ है प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज, इट इज आल्सो पोल्यूटेंट. तो पोल्यूटेंट क्या करते हैं? पोल्यूटेंट हमारी क्वालिटी ऑफ एयर को डैमेज करते हैं, वाटर को, लैंड को, सॉइल को, ठीक है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को, जैसे नॉइज पोल्यूशन की हम बात करेंगे, तो वो हमारी सब चीजें जो पोल्यूट करते हैं उसमें पोल्यूटेंट कहते हैं, है ना, जो हार्मफुल मटेरियल्स है. Many things that are useful to people produce pollutant. जैसे कि हम कार यूज करते हैं बट उसमें बर्निंग कॉल लाइक, है ना,
जैसे उससे नीचे जैसे धुआं निकलता है उसे हम, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। जैसे बर्निंग कोल टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूट्स द एयर, गार्बेज फेंकते हैं और सीवेज वगैरह, ये ऑल्सो पोल्यूट्स द लैंड एंड वाटर। हम बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल दें उसमें अपने जैसे हमने सपोज एग्रीकल्चर किया है, मैंने फार्मिंग करी है, वीट उगाया, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स डाल दिए, तो उससे सॉइल खराब हो जाएगी, तो उससे हार्मफुल एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ भी खराब हो सकती है, वाइल्ड लाइफ भी खराब हो सकती है, वाटर वेज भी खराब हो सकती है। अब हम जो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने सिर्फ 3 टाइप ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा पढ़े, एयर, वाटर, लैंड। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ा होगा नॉइज पोल्यूशन, पर आज हम 5 टाइप के पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, जैसे कि मोस्टली लोगों ने सुना है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये लोगों ने सुना है। अब हम सॉइल पोल्यूशन देख, सॉइल पोल्यूशन बेसिकली सॉइल एरोजन जैसा होता है। और लाइट पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन तो मोस्टली सुना ही नहीं होगा किसने। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ पोल्यूशन होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, बट मैं आई हैवंट कवर्ड दैट पार्ट इन दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले लैंड पोल्यूशन देखते हैं। लैंड पोल्यूशन क्या होता है, जो भी हम लैंड पे कोई भी गार्बेज वगैरह फेंक देते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, लैंड कैन बी बिकम पोल्यूटेड बाय हाउस होल्ड गार्बेज एंड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जैसे कई बार फैक्ट्रीज भी फेंक देती है कूड़ा वगैरह, तो उससे भी लैंड पोल्यूट हो सकती है। अमेरिकन in 2014, American produced about 258 tons of solid waste. According to US Environmental Protection Agency, a little half of the waste, 136 million ton, was gathered in the landfill. अब ये तो हो गया, चलो ये तो हमारा हो गया अमेरिकन सर्वे। हम रेगुलर अब इंडिया में देखते हैं रेगुलरली आसपास, तो हम आसपास देखते हैं कि कितना ज़्यादा लैंड पोल्यूशन है, पीपल आर थ्रोइंग अवे एवरीथिंग, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लैंड हमारी पोल्यूटेड हो रही है, राइट। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे केमिकल्स, इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं, या सपोज हमने कुछ फेंक दिया पानी में, प्लास्टिक फेंक दिया है कुछ, हम जैसे लोग कुछ ना कुछ फेंक देते हैं पानी में, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स, कभी कभी क्या होता है, हम जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर देते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के यूज होने की वजह से लैंड में तो पोल्यूशन आया ही आया, ठीक, सॉइल पोल्यूशन हो गया, उससे बताऊंगी आपको। बट जब वो पानी बहता है उससे, तो उससे वाटर पोल्यूशन, जैसे जैसे पानी से सपोज पानी बहा, उस लैंड से रेन आई, जो भी आया पानी बहा, तो वाटर में पोल्यूशन, वाटर में भी हमारा पोल्यूटेंट चला गया। Water pollutants happens when chemical or dangerous foreign substances are introduced in the water, जैसे कि chemicals, sewage, pesticides, fertilizers, or metal like lead and mercury. Now lead and mercury one of the most dangerous metals, जो बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। According to Environmental Protection Agency, 44% of streams, it says stream miles, 64% of lakes and 30% of bay, these areas are not clean for fishing and swimming. ये EPA वही होगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। इन्होंने ये भी स्टेट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट्स आर बैक्टीरिया, mercury, phosphorus and nitrogen. These came from most common sources of contaminants. It includes agricultural runoff, जैसे मैंने बात करी थी अभी, air deposition and water diversions and channelization of streams, ये सब मेन एरियाज है अमेरिका में पोल्यूशन के। वही भाई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में तो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज भी होते हैं। दूसरे रीज़न ये होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई नहर बह रही है आपके घर के पास, उसमें कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, तो उससे वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाता है। सीवेज गंदा होता है, बहुत सारे रेगुलर डे टू डे होते हैं, जैसे लोग इतना ध्यान नहीं रखते पानी का। इनफैक्ट अभी आज की डेट में देर आई बेट श्योर कोई भी मिडिल क्लास या फिर हायर सोसाइटी जो बिलो पॉवर्टी ना हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आरओ या फिर वो नहीं लगा हुआ, एक्वागार्ड। इतना जबरदस्त वाटर पोल्यूशन है कि वी इवन द वाटर इज क्लीन, जब आता है पानी वो क्लीन है, बट स्टिल हम एक्वागार्ड लगाते हैं,
क्योंकि इट्स नॉट एज क्लीन टू कंज्यूम. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस कि वाटर पोल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है. आगे देखते हैं कि अब एयर पोल्यूशन क्या है. कॉमन सेंस. जब ये तो बहुत कॉमन जब कार से धुआं निकल रहा है, सपोज स्मोक निकलती है पीछे से, या फैक्ट्री से चिमनी से निकल रही है, यहाँ पे देखो, ठीक है. या सब अनदर देखते हैं हम, जब लोग जो लैंडफिल्स में ना चीजों उसको पत्तों वगैरह को जला देते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है. और गीले पत्तों को जला दो तो बहुत जबरदस्त धुआं निकलेगा. वो धुआं नहीं होता, वो स्मोक होती है बेसिकली. तो एनीथिंग लैंड एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस. कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई. ये सब कहीं से निकलेंगे? मोटर व्हीकल से निकलते हैं या जहां से भी निकलते हैं, और ये विजिबल है, ठीक है. तो दिस कॉज लाइक ये क्या करते हैं, ब्लैक कार्बन बना देते हैं, जो कि ऐसे ऐसे ब्लैकिश कलर का. कभी देखा हो कि बीच में बहुत ज्यादा स्मोक एक टर्म आया था. स्मोक क्या होता है? ठंड के टाइम पे टर्म आया था. स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग. फॉग क्या हो गया? धुंध, जो सर्दियों में होती है, एक हल्का सी ठंड की परत होती है, जो हमें ना हमें लाइक देख नहीं पाते थोड़ी सी दूरी पे कि क्या चीज है. तो इट्स लाइक अ ठंड, लाइक एक हल्की सी व्हाइट कलर की परत होती है. दैट्स नॉट बैड. बट व्हेन द फॉग इज मिक्सड विद स्मोक. व्हाट इज स्मोक? कोई धुआं, किसी जैसे बहुत ज्यादा अभी पीछे जब ये कोई पर्टिकुलर अप्रैल जब ये काटते हैं, सो ये पंजाब साइड पे फसल काटी जाती है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा यहाँ से ट्रैवल करता है स्मोक. तो एनीवेज बहुत सारे तरीके, सिर्फ वही नहीं है, फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा स्मोक निकलती है. कार्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, कई डीजल कार्स होते हैं, दूसरी कार्स होती है. कई लोग लैंडफिल्स में गीले पत्तों को जला लेते हैं, तो वहां से बहुत सारे रीजंस होते हैं स्मोक क्रिएट के. तो जब स्मोक और फॉग मिल जाती है तो वो स्मोक होती है. एंड स्मोक इज वेरी डेंजरस फॉर कंजम्पशन, वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी. और यहाँ से हमारा AQ आता है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बताता है कि हमारे जिस एरिया में हम डिसाइड कर रहे हैं वहां पे एयर क्वालिटी क्या है. तो कभी मैं अगर कभी बार वीडियो बनाऊंगी तो मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. बट ये बेसिकली एयर क्वालिटी चेक करने के लिए होता है. पीछे आया था कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही महान है, बहुत ही पुअर है. ये भी सुनने में आया था कि पता नहीं कितने सिगरेट स्मोक करते हैं दिल्ली हाइट्स से, दिल्ली वाले. तो AQI बेसिकली क्या होती है कि एयर क्वालिटी कैसी है. अब AQI वैसे अगर 0 से 50 के बीच में होती है तो ये ठीक है, ये बेटर है, मतलब हमारी एयर क्वालिटी अच्छी है. बट अगर 51 से 100 के बीच में होगी तो इसका मतलब है कि एयर क्वालिटी हमारी मॉडरेट है, ज्यादा अच्छी नहीं है. और अगर 100 से भी अब ऊपर चली गई, ठीक है, जितनी भी चलेगी, तो वो तो बहुत ही अनहेल्दी हो गई हमारी सोसाइटी के लिए या फिर हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए. तो एयर पोल्यूशन में यही सब आता है. मूविंग अहेड, हमारा आता है सॉइल पोल्यूशन. अब सॉइल पोल्यूशन बेसिकली होता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहाँ पे? लैंड बायोडाइवर्सिटी में, एंड इंडेंजर द हेल्थ पर्टिकुलरली थ्रू फूड. बेसिकली सॉइल पोल्यूशन कब हुआ? जब हमने कुछ फसल उगाई और फसल हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है. जैसे कि स्टॉक ब्रीडिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. ये भी एक्सप्लेन करूंगी कभी वीडियो में. बेसिकली बहुत दूसरे जैसे छोटे एरियाज में फार्मिंग करनी और वहाँ पे एक्सेसिव केमिकल्स को यूज करना, पेस्टिसाइड्स को यूज करना, फर्टिलाइजर्स को यूज करना, दिस कैन हार्म द सॉइल. और बेसिकली सॉइल पोल्यूशन तो ग्लोबल थ्रेट है. ये इन सब एरियाज में, कौन से एरियाज लिखे हैं मैंने? यूरोप, यूरेशिया. यूरेशिया क्या हो गया? यूरोप प्लस एशिया. यूरेशिया ऐसे होता है ना, अगर मैप देखो कभी आप ये कॉन्टिनेंट्स देखो, तो यूरोप और एशिया का ना एक छोटा सा एरिया साथ में, यहाँ पे ना वो आता है रशिया. मतलब यूरोप शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा एशिया है, तो उस एरिया को हम कहते हैं यूरेशिया. तो यूरेशिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इन सब एरियाज में बहुत जबरदस्त सॉइल पोल्यूशन का थ्रेट बना हुआ है. और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन्होंने बताया कि अगर बहुत इंटेंस एंड इवन मॉडरेट डिग्रेडेशन इज ऑलरेडी इफेक्टिंग वर्ल्ड्स 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स सॉइल, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज recovery is so slow that it would take 1,000 years to create 1 centimeter layer of arable soil. Arable soil यानी कि perfect good soil. अगला हम देखते हैं नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद हमारा लाइट पोल्यूशन आता है. तो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली रेगुलर एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम साउंड. जैसे हम बैठे हुए हैं तो बाहर किसी की शादी हो रही है और बहुत तेज बैंड बजा पड़ रहा वो बज रहा होता है, ढोल बज रहे होते हैं, जो भी बज रहा होता है, तो वहां से बहुत जबरदस्त साउंड आती है तो वो भी एक काइंड ऑफ पोल्यूशन होती है. तो अभी तो पीछे गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि शायद 12 बजे के बाद नॉइज पोल्यूशन लाइक शादियाँ वगैरह नहीं होंगी. तो टेक्निकली इफ आई टॉक अबाउट नॉइज पोल्यूशन, इट मीन्स एक्सेसिव शोर मचना, साउंड लेवल पे बहुत ज्यादा साउंड लेवल बढ़ जाना. ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे आईज ईयर्स के लिए अच्छा नहीं है और ह्यूमन बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साउंड लेवल लेस देन 70 dB, dB मेजर टू डेसिबल्स, साउंड लेवल को मेजर करने का होता है. तो अगर 70 से नीचे हो तब तो हम डैमेज नहीं कर रहा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, रिगार्डलेस हाउ लॉन्ग और कंसिस्टेंट द एक्सपोजर इज. ठीक है, बट अगर 8 आवर से ज्यादा लाइक 8 आवर से ज्यादा लंबे टाइम तक अगर 85 dB पे अगर हम कोई भी आवाज सुनते हैं, ये 70 से ऊपर है, 70 dB से ऊपर है, तो 70 dB इज लाइक अ नॉर्मल साउंड की इतनी तो चलती है. बट 85 तक पहुंच गई, और कहाँ गया, 85 तक पहुंच गई तो अगर मैं 8 घंटे से ज्यादा देख लिया तो वो थोड़ा सा डेंजरस है और हैजार्डियस है. अगर हम 8 years किया, इफ यू वर्क 8 hours डेली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू अ बिजी रोड और हाईवे, you are likely to expose to traffic noise pollution around 85 dB. तो टेम्पो वगैरह बाहर ट्रक भी चलते हैं जो, इनफैक्ट if you have read कि मोस्टली जो हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है डू नॉट हॉन्क, सॉरी कहाँ लिख रही हूँ, डू नॉट हॉन्क, हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है, बहुत सारी जगहों पे स्कूल्स के बाहर लिखा होता है. इसका मेन पर्पस यही होता है कि अंदर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, नॉइज पोल्यूशन ना क्रिएट. तो हमने पढ़ा कि जो नॉइज पोल्यूशन होती है वो कितने एमबी से ज्यादा, कितने डीबी से ज्यादा होती है, 70 dB से ज्यादा. अगर 85 dB पे हम कुछ सुनते हैं 8 घंटे से ज्यादा, तो बेटा वो तो बहुत ही हैजर्डियस है, बहुत ही डेंजरस है. लाइट पोल्यूशन देखते हैं. दो लाइट पोल्यूशन मोस्ट लोगों ने सुना नहीं होगा और नया भी कंसेप्ट है. तो लाइट पोल्यूशन बेसिकली अनवांटेड और इनएप्रोप्रिएट अगर आर्टिफिशियल लाइटिंग चल रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो हमारे आईज को परेशान कर रहे हैं, तो उसे हम लाइट पोल्यूशन कहेंगे. इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस, लाइट पोल्यूशन रेफर्स टू पुअरली इम्प्लीमेंटेड लाइटिंग ड्यूरिंग डे और नाइट and can be found as an issue throughout the levels of our societies. It impacts from the individual level, such as from unwanted blinking light on the consumer product, to the community level, like new urban development impacting existing communities from poorly banned street lights. Poorly planned, अगर देखो street lights are good, but अगर excessive light होगी street lights पे तो it can affect our eyes. ठीक है, तो बेसिकली light pollution can be understood as a phenomenon that refers not only specific source of pollution but wider collective impact of inserting source of pollution. So this is it, I guess. पहले लाइट पोल्यूशन था, तुमने कितने पोल्यूशन पढ़े? एक हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, एक वाटर, हाँ बस एयर वाटर लैंड तो याद रहेगा. नॉइज भी चलो मैं 1% कहती हूँ याद रहेगा, बट लैंड और सॉइल ऑलमोस्ट एक जैसा है. तो लैंड और सॉइल देख लेना. सॉइल जब हम फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और लैंड जब हम कोई गार्बेज वगैरह थ्रो कर दें लैंड पर अपने ऑन रोड पे. और हमने पढ़ा है लाइट पोल्यूशन, जो एक्सेसिव लाइट से हम आंखें हमारी वो लाइक एक्सेसिव लाइट से, जैसे स्ट्रीट लाइट पे बहुत ज़्यादा लाइट है, या फिर ऐसे इनअप्रोप्रिएट लाइट विच कैन हार्म ह्यूमन बॉडी. So these are all the pollutions we have read about today. If you like the video, please subscribe to our channel and comment. Tell me tell me in the comments if you find it good, or if you have other questions from me, if you want, or
please help me, like suggest me the topics you want to see videos on. So I guess this is it. Have a good day.